abroad universities look into your entire academic profile, right from your 10th standard and 12th standard, and also checks out your work experiences, voluntary experiences, and you would also need to demonstrate your English language skills. आपने एग्जाम्स के बारे में तो सुना ही होगा, IELTS and TOEFL. And guys, I have a good news for you. I have made a detailed SOP checklist, which is going to be a super helpful document if you are in the process of making SOP. And it's a free resource, so any of you can access that document. All you need to do is fill up that Google form, which I have linked in the description box, and me or one of my team members would get in touch with you. So guys, अब delay नहीं करते हैं. Let's get to making that SOP. 7 steps on how to make a kick-ass SOP. तो उससे पहले guys अपने पेन और पेपर ले आओ और एकदम कैंडिडली शुरू कर दो अपनी कहानी लिखना. ग्रामर, फ्लो, थीम, पंचुएशन सब बाद में देखा जाएगा. अभी जितना फ्री फ्लोइंग लिख सकते हो ना, स्टार्ट कर दो. डोंट ओवरथिंक द फर्स्ट स्टेप. रिमेंबर फाइंडिंग नीमो एंड जस्ट स्टार्ट स्विमिंग. Step 1. Your why and the opening. So guys, इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को आप आंसर करने का ट्राई करेंगे इन स्टेप 1. Why have I chosen this course? What triggered my interest? And finally, why does it interest me? Coming to my SOP's example, as you can see, मैंने start किया है मेरे why से. That ultimately influencing people around me and making a positive difference in their lives. And then what triggered my interest में मैंने लिखा है नीचे. I had always been the go-to person for my friends, colleagues and juniors for advice on their careers, and it was amazing what our conversations did for their lives. So that completes your step 1. Step 2, you are going to talk about your course. यहाँ पे 2 aspects है. Number 1, your past course. यहाँ पे you will mention what did you study, what skills you picked up, and is it linked to the course that you have applied for. I have written how I did my engineering, 4 years engineering, and then I did my master's degree from IIT Roorkee, and how I did my thesis from University of Dresden, Germany, which was an international scholarship. This was about my past course. Next thing you're going to mention here is about your applied course. कि what intrigued your enthusiasm to go for this course? Is there any particular staff or reasons why have you chosen this university in particular? And then what are the current developments in your course area? Guys, यहाँ पे I will suggest कि be as specific as you can. आप जितना in depth research करके यहाँ पे लिखोगे ना, उतना उन्हें गारंटी देगा एडमिशन वालों को कि you are really passionate about this course and you are really passionate about their university. In this paragraph, I have mentioned why I am choosing this university in UK and I have did my research and mentioned all of it. तो similarly आपको भी research करके यहाँ पे mention करना है. Step number 3, your experience. आप यहाँ पे ये सारी चीजें mention करोगे. What experience do you have? If that experience is not relevant, then draw lines on what skills you acquired from that and what can be transferred to the current course that you have applied. For example, मेरा past experience engineering field में था. That is why it was important for me to draw कि engineering पढ़ते पढ़ते ऐसे कौन से skills acquire किए मैंने जो career coaching में भी useful होंगे. Finally, you will talk about what voluntary experience, work experience or jobs you have done, what did you learn out of it and what skills did you develop. तो यहाँ example लेंगे तो मैंने 2 experiences के बारे में बात की है. One, how I was a mentor in an NGO called Child Rights and You, जहाँ मैं maths और science पढ़ाती थी, and how I was a part of Teach India, जहाँ मैं English पढ़ाती थी. You will see that मैंने engineering related experience mention ही नहीं की है because we have limited words and have only chosen those experience जो मुझे career guidance में actually help होगा. Step number 4, your career plans. Guys, ये section बहुत important है क्योंकि यहाँ पे आपको admission वालों को ये बताना है कि आपको जिंदगी में करना क्या है. Of course, एकदम specific होने की ज़रूरत नहीं है, but at least a broader vision. So what you would need to answer here is
what are your career ambitions and how does this link to the course that you have applied for? तो आप जो कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो आपको करियर एम्बिशन तक कैसे पहुंचाएगा? तो इफ यू विल हैव अ लुक एट माय एसओपी, इस पैराग्राफ में मैंने मेंशन किया है माय एम्बिशंस. यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ रीड थ्रू द पैराग्राफ. बेसिकली मैंने ये बोला है कि आई वॉन्टेड टू स्टडी दिस फ्रॉम यूके, क्योंकि करियर काउंसलिंग बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, एंड आई वॉन्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन इंडिया आफ्टर कमिंग बैक. स्टेप नंबर 5, योर इंटरेस्ट. तो ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दीज इन दिस सेक्शन. What are your interests and can you link them to the chosen course? For example, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, बट आई हैव नॉट मेंशनड इट इन माई एसओपी, क्योंकि करियर गाइडेंस का डांस से कोई रेलेवेंसी नहीं है. सो मेक श्योर आपके इंटरेस्ट बहुत केयरफुली चूज करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल टीम के कैप्टन हो तो ऑफकोर्स आप लिख सकते हो, बिकॉज दैट डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप स्किल्स विच दे आर लुकिंग फॉर. Similarly, you can mention if you had any positions of responsibilities and what did you learn out of that position, what skills did you develop, and you can also mention about your qualities, your personality and your strengths. So basically इस सेक्शन में आपको ये कवर करना है कि आप एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल हो जो उनके यूनिवर्सिटी के कल्चर में फिट बैठ सकता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑल स्टडीज. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपने कभी गैप ईयर लिया है या एजुकेशन गैप है, मेक श्योर यू ऑल्सो मेंशन दैट कि वो गैप क्यों लिया होगा. ट्राई टू पुट इट इन अ पॉजिटिव लाइट एज मच एज यू कैन, बट ऑल्सो बी ऑनेस्ट अबाउट इट. स्टेप नंबर 6, कंक्लूजन. यहाँ पे गाइज यू हैव टू समराइज योर स्टेटमेंट्स बेस्ट बिट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है दैट व्हाई दे शुड चूज यू एज अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ अदर एप्लीकेंट्स. तो एंड ना एकदम भारी, एकदम पावरफुल होना चाहिए, सो दैट उसका इम्पैक्ट उनके दिमाग में रहे. एंड लास्टली गाइज, स्टेप नंबर 7, फाइनल चेक्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स कवर करने वाली हूँ. सबसे पहला, फाइनल एसओपी में आप ये चेक करना कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ इंटरेस्टिंग है या नहीं, क्योंकि समझ लीजिए कि ये आपके मूवी का ट्रेलर है. अगर हमने ट्रेलर में ही एडमिशन वालों को पका दिया ना, तो वो आपका एसओपी पढ़ेंगे भी नहीं. सो प्लीज़ मेक इट वेरी इम्पैक्टफुल. समटाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स अपना एसओपी स्टार्ट करते हैं बाय अ फेमस कोट, बाय अ पर्सनैलिटी. ऑनेस्टली आई डोंट प्रेफर इट, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है यार, किसी का लिया हुआ है वो. You write your own story. उसके बाद ध्यान रहे कि you don't have to tell them all your life story. Pick out the most important bits and themes that you want to tell them, which are relevant to the course that you have applied for. Also guys, make sure कि आपका पूरा SOP एक flow में हो, एक structured theme में divided हो. तो आप पहले लास्ट कोर्स के बारे में लिखेंगे, देन अप्लाइड कोर्स के बारे में लिखेंगे, देन अपने करियर एम्बिशंस के बारे में लिखेंगे, एंड देन कंक्लूजन. मेक श्योर कि आप पढ़ने वाले को कंफ्यूज ना करें. नेक्स्ट थिंग इज मेक श्योर दैट यू हैव चेक्ड योर एसओपी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट ग्रामर एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. फॉर दिस आप किसी और को प्रूफ रीड करवाइए, क्योंकि कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, बट हमारे फ्रेंड्स और मेंटर्स वुड पॉइंट योर मिस्टेक्स आउट. नेक्स्ट थिंग इज क्लीशे अलर्ट. यार मैंने बहुत सारे एसओपीज़ में देखा है कि स्पेशली इंजीनियरिंग रिलेटेड एसओपीज़ कि मुझे मैथ्स और साइंस पहले से ही बहुत पसंद था, इसीलिए मैं इंजीनियर बना. गाइज बहुत क्लीशे है. आई हैव स्पोकन टू द एडमिशन ऑफिसर्स, ये देखकर वो हंसते हैं. सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेक श्योर व्हाट शुड बी योर वर्ड काउंट. जैसे यूके में एसओपीज आर जनरली फॉर 500 वर्ड्स, बट यूएसए में नंबर ऑफ वर्ड्स अलग होते हैं. सो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट टू द यूनिवर्सिटी दैट हाउ लॉन्ग ऑफ एन एसओपी दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड देन अबाइड बाय इट. एंड लास्टली गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट जस्ट टेल देम, शो देम. बेसिकली आपको एडमिशन ऑफिसर्स को ये नहीं बताना है बस कि ये एक्सपीरियंस था, मैंने ये पढ़ा, ये किया. उनको दिखाओ कि ये एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा, ये पढ़ने से मेरे ये स्किल्स डेवलप हुए. सो शो देम, डेमोन्स्ट्रेट इट. और गाइस जाते जाते ना मुझे एक और चीज़ बोलनी है. हमें कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है, स्पेशली व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग डजंट कम नेचुरली टू अस, और वो बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स नहीं आ रहे होते हैं.
गाइस बीन देयर, मेरी भी इंग्लिश स्कूल में बिल्कुल अच्छी नहीं थी. इनफैक्ट मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे हंस रहे होंगे याद करके व्हाट ऑल इंग्लिश goof ups आई हैव मेड, ट्रस्ट मी. बट द पॉइंट इज, इन सारी चीज़ों से डरना मत. तो अब ड्रीम कॉलेज ठान लिया है तो जाना तो है. इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. टिल देन मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क दे दिया है, तो लग जाओ काम पे. मैं दिखती बड़ी चिल टाइप की हूँ, बट आई एम अ टफ टास्क मास्टर. सो लॉट्स कमिंग योर वे, सो यू बेटर बी एक्साइटेड. टिल देन मेहनत करो, मस्त रहो और गाइज शेयर भी कर दो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.